बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असाइनमेंट नंबर 2 है फाइनेंस 630 की, और इस असाइनमेंट के टोटल मार्क्स हैं 15। इससे पहले कि हम असाइनमेंट के सलूशन की तरफ जाएं और असाइनमेंट को समझें, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी असाइनमेंट अपलोड करूं उसकी वीडियो आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। चलें तो हम अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन्वेस्टिंग इन अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट्स, इंटरेस्टिंग बेयरिंग सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स, फाइनेंशियल मैनेजर and investors are constantly faced with the opportunity to generate a positive return on their funds. Therefore, the timing of money outflows and inflows has important economic implications that financial managers clearly perceive as the time value of money. The time value of the money concept states that 1 rupee received today is more valuable than 1 rupee received tomorrow. Among the basic views of time value is the future value. Future value refers to the value of a current asset at some future date. It is based on an assumed rate of growth over time. Saving institutions advertise compound interest returns at a rate of X percent or X percent interest compoundly, annually, semi annually, quarterly, monthly, weekly, daily, or even continuously. Suppose Mr. A started a sole proprietor business. He wants to purchase a vehicle for use in his business. The purchase price of vehicle at the end of each year is given in the below table. ये फिर नीचे टेबल है जिसमें जी एक कॉलम में ईयर्स बताए गए हैं और एक कॉलम में परचेज प्राइस ऑफ द व्हीकल बताई गई है। 2022 में जो व्हीकल की प्राइस है वो 600,000 है। 2023 में ये 680,000 हो जाती है और 2024 में ये 740,000 हो जाती है और 2025 में ये प्राइस 750,000 हो जाती है। He invested almost whole of his saving in his new business and therefore does not have sufficient funds to purchase a vehicle at this time. Moreover, he does not want to borrow funds from any other source, but he is expecting to have some saving from his business in upcoming years. He has a little know-how about the concept of time value of money. Therefore, he discussed the matter with one of his friends who is working in a business. His friend suggested him to start depositing his savings in a bank account. He further told him that he may withdraw his fund at the time when his funds grow up to become sufficient to purchase a vehicle. Thus, Mr. A deposited Rs 100,000 on 1st of January 2022 and will deposit 200,000 on 1st January of 2023 and 300,000 on 1st January of 2024. The bank credits his account at the rate of 10% per annum compounded annually for the first 2 years and 9% compounded quarterly from third year onward till the time he keeps his saving in the account. उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं, पार्ट 1 रिक्वायरमेंट है जी, फाइंड हिज अकाउंट बैलेंस ऑन 31st of December 2023. Are sufficient funds available to Mr. A to purchase the vehicle on this or the next day? Also consider the funds of 1st January of 2024 in this decision. उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट है, फाइंड हिज अकाउंट बैलेंस ऑन 31st of December 2024. Are sufficient funds available to Mr. A to purchase a vehicle at the end of year 2024. इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 3 है, फाइंड हिज अकाउंट बैलेंस ऑन 31st of December 2025. Should Mr. A withdraw all of his funds on 31st of December 2025 and purchase the vehicle? तो ये तो असाइनमेंट का हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी, के जी
मिस्टर ए जो हैं मतलब उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और वो अपने बिज़नेस के लिए गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं। और इस चीज़ में जो फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट है वो हमने जो बताना है कि जी जो आज जो हमारे पास अमाउंट मौजूद है इसके फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। और उसके लिए जो उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ़ तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली और इवन कंटिन्यूसली बेस पे हमें इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जी मिस्टर ए ने गाड़ी परचेज़ करनी है और उनके पास सफिशेंट बैलेंस नहीं है और वो चाहते हैं कि जी मैं किसी से कोई चीज़ मतलब किसी से जो उधार है वो भी ना लूँ और अपनी सेविंग्स से क्या कि मैं अपनी जो गाड़ी है वो परचेज़ करूँ। उसके अलावा हमें जो डाटा दिया गया उसमें ये है जी गाड़ी की जो कीमत है वो हर साल बढ़ती रहती है। ये 22 में वो 600,000 थी, 23 में वो 680,000 हो गई और 24 में 740,000 हो गई और 25 में 750,000 हो गई। तो अभी जो मिस्टर ए थे उन्हें उनके एक दोस्त ने जी गाइड किया है, गाइड ये किया कि जी आप सेविंग अकाउंट में अपनी जो है कि रकम रखें तो आप इतने अरसे के बाद गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो ये प्रॉब्लम दी गई है, जो ये क्वेश्चन दिया गया है, मिस्टर ए जी 1 जनवरी 2022 को 1 लाख रुपया जमा करवाते हैं, डिपॉज़िट करवाते हैं। उसके बाद 1 जनवरी 2023 को 2 लाख रुपया जमा करवाते हैं और 1 जनवरी 2024 को 3 लाख रुपया जमा करवाते हैं। और जो बैंक है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे करता है, पहले 2 साल में 10% और फिर आगे जो है 9% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे करेगा। हमसे रिक्वायरमेंट्स 3 पूछी गई हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमने जो मिस्टर ए का अकाउंट बैलेंस है 31 दिसंबर 2023 को वो बताना है और ये बताना है कि क्या इतने पैसे हो गए हैं उनके अकाउंट में कि वो जी गाड़ी परचेज़ कर लें। और इसी अकाउंट में जो है आपने 1 जनवरी और 2024 का भी जो डिपॉज़िट है वो ऐड करना है। ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 है, उसमें आप हमने अकाउंट बैलेंस बताना है जी 31 दिसंबर 2024 का, क्या कि उनके पास इतना सफिशेंट बैलेंस हो गया कि वो गाड़ी परचेज़ कर सकें। और आगे थर्ड रिक्वायरमेंट आ जाती है, उसमें कहते हैं जी अकाउंट का बैलेंस बताएं 31 दिसंबर 2025 को कि मिस्टर ए तमाम अपनी सेविंग्स को विड्रॉ कर लें और गाड़ी को परचेज़ कर सकते हैं या नहीं। तो अभी हम अपने सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। हमें पहले फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला बताना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू एन जो होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स होता है। ठीक है। ये मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में मैंने फर्स्ट कॉलम में ईयर्स ले लिए हैं, दूसरे कॉलम में मैंने प्राइस ऑफ द व्हीकल ले ली है, थर्ड कॉलम में मैंने डेट्स ले ली हैं। वो डेट्स हैं जी 1 जनवरी 2022 को उन्होंने जो डिपॉजिट किया था, उसके बाद जी जो उसका एंड ईयर्स बैलेंस होता है वो फिर नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी, फिर लास्ट 31 दिसंबर, इसी तरह मैंने 2025 तक बैलेंस ले लिया। उसके बाद जो अकाउंट बैलेंसेज है वो मैंने लिख दिए हैं, उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो नीचे मैंने कैलकुलेट करके दिखा दी हैं आपको। ठीक है। फर्स्ट जो बैलेंस था वो उन्होंने जो 1 जनवरी 2022 को उन्होंने जब डिपॉजिट किया था वो 100,000 है और यही बैलेंस जो है 31 दिसंबर 2022 को कितना हो जाएगा, क्योंकि जो बैंक है वो 10% पर एनम उन्हें जो इंटरेस्ट है वो पे कर रहा है। तो फर्स्ट ईयर में जो 10% का एनम हम निकालेंगे, वैल्यूज फुट की है, तो जो 31 दिसंबर 2022 को जो बैलेंस है वो हो जाता है जी 110,000 रुपीज़। अभी उन्होंने 1 जनवरी और 2023 को उन्होंने जो 200,000 जो है रुपीज़ जो वो डिपॉज़िट और करवाए थे। ठीक है। तो अभी जो बैलेंस है वो कितना टोटल हो जाता है, ये जी 200,000 प्लस 110,000 ये हो जाता है 310,000। ठीक हो गया। अभी ये 310,000 में फिर दोबारा 10% एनम लगता है, तो ये बैलेंस जो हो जाता है 341,000। फिर जी इसके बाद क्या होता है जी 1 जनवरी 2024 को जो मिस्टर ए हैं वो 300,000 दोबारा डिपॉजिट करवाते हैं, तो ये टोटल बैलेंस हो जाता है 641,000। 641,000 पर जब जो इंटरेस्ट है अभी वो 9% पे करते हैं। ठीक है। 2 ईयर्स के 10% थे, उसके बाद 9% है। अभी 9% जो इन पर इंटरेस्ट लगेगा तो ये टोटल बैलेंस हो जाता है 698,690। अभी जो बैलेंस है 31 दिसंबर 2024 को जो हो जाएगा वो 698,690 रुपीज़ हो जाएगा।
मिस्टर ए हैं वो 1 साल के लिए अपनी जो ये अमाउंट है दोबारा रखते हैं, अकाउंट सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं, कोई चीज़ डिपॉजिट नहीं करवाते। तो यही बैलेंस जो है ये 1 जनवरी 2025 को आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा और उस पर 9% दोबारा जो इंटरेस्ट है वो ऐड होगा। तो ये टोटल बैलेंस जो हो जाता है वो 761,572 बन जाता है। ठीक हो गया। ये मैंने कैलकुलेशंस कर दी हैं, टेबल में मैंने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अभी हम अपने रिक्वायरमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसमें हमने तो एक अकाउंट बैलेंस बताना है जो 31 दिसंबर 2023 को है, और उसी में जो हमने फंड्स थे 1 जनवरी ऑफ 2024 उसको भी कंसीडर करना है। तो ये हमारा जो टोटल बैलेंस हो जाएगा वो 641,000 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है फाइंड इज अकाउंट बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2024 आर सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल टू मिस्टर ए टू परचेज अ व्हीकल एट द एंड ऑफ द ईयर। 31 दिसंबर 2024 का जो बैलेंस है ये हो जाता है 698,690, जबकि जो गाड़ी की जो प्राइस है वो है 740,000। मतलब कि जो हमारा बैलेंस है वो इतना नहीं है कि जी हम गाड़ी परचेज़ कर सकें। तो पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा जी नो, ही हैज़ नॉट सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल टू परचेज व्हीकल एट द एंड ऑफ द ईयर 2024। इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट आ जाती है फाइंड इज अकाउंट बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2025 शुड मिस्टर ए विड्रॉ ऑल ऑफ हिज फंड्स ऑन 31 दिसंबर 2025 एंड परचेज द व्हीकल। यस, he can now withdraw his all funds because his funds on 31 December 2025 will be 761,572। मतलब कि ये अभी इसका बैलेंस जो है ये बन जाता है 7,61,572 रुपये। ठीक हो गया। तो उस दिन हम जी अकाउंट का जो गाड़ी की प्राइस है वो कितनी होती है 7.5 लाख रुपया। ठीक है। तो मतलब कि अभी उसका जो बैलेंस है वो इतना हो चुका है कि वो उसको विड्रा करे और गाड़ी परचेज़ कर सकता है। तो ये जी असाइनमेंट का सलूशन है। तो असाइनमेंट थी ये फाइनेंस 630 की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को कॉपी पेस्ट मत करें, बस समझें और अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।